very good afternoon. I am Bhavna and I welcome you to the platform of the Aspirants Club. Here we discuss the daily newspaper and the conceptual clarifications related to it. Apart from that, on our platform, we share various tips and tricks which helps you boost your UPSC preparation. So now let us move towards the first article of our newspaper, that is about Ukraine-Russia crisis. So recently, Ukraine drops another pitch for NATO. So, in a recent meeting, the Ukrainian President Zelensky said that he is open to compromise on his breakaway reasons. President said that he is no longer emphasizing or pressing about the NATO membership, यानी कि वो NATO के membership के लिए अब और ज़्यादा उत्तेजित दिखाई नहीं दे रहे हैं और साथ में ही जो दो ब्रेकअवे रीजन्स हैं डोनेट्स्क और लुहांस्क उसको लेकर वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। अब इसी आर्टिकल से रिलेटेड एक और न्यूज है जो कि यूएस प्रेसिडेंट जॉय बिडेन को लेकर है। जॉय बिडेन ने ये कहा कि वो रशियन इकोनॉमी के मेन आर्टरी को टारगेट कर रहे थे और इसके साथ ही उन्होंने ये अनाउंस किया कि यूएस वुड बैन ऑल द इंपोर्ट ऑफ ऑयल gas and energy which comprises of the Russia's main economic sector. That means that Russian oil will no longer be acceptable at US ports. तो ये कहना है प्रेसिडेंट जोए बिडेन का। ओके, इसके बाद एक और चीज है, Zelensky asked Modi to help in order to end the conflict. Now this acknowledgement of the conversation came shortly after India began the process of evacuating its students. So 694 students who were stranded in Sumy in eastern Ukraine were recently evacuated and the process is still going on after February 24. So after that, the Ukrainian president asked help from India to help this war to end, to help this conflict to end here. Okay, so our next article is regarding the resumption of international flights. So recently, the international flights from India are set to resume fully from March 27, and this happens 2 years after the country imposed a total ban on them to curb the spread of COVID-19 cases. So let us see the series of events that happened during this time. On March 23, 2020, government announced a ban on international flight due to COVID-19 pandemic. On March 24, a pan-India lockdown was imposed and this decision was taken that the domestic flights are to be banned from March 25. On May 25, however, these domestic flights were restarted. On July, India entered into an air bubble agreement which was with France, Germany and US. However, on November 26, 2021, government announced that the international flights are to be resumed, but some days later, these orders were withdrawn because of the Omicron variant of COVID-19 were seen spreading. Now, how this decision is helpful? This decision is helpful in relation to the economic recovery. It is said that the step will provide the impetus to the economic recovery of sector and the nation. With borders opening for tourists, definitely our tourism sector will get a boost and we will soon be announcing the schedule for international destinations. This was said by Indigo CEO Ronojoy Datta. However, through the regular scheduled international flights were banned on March 23, 4 months later, the government also entered into a bilateral air bubble agreement with different countries which were France, Germany, US and UK amidst the opposition by some of these countries to Air India repatriation of flights. So after this bilateral bubble agreement, most of the India's international flights were banned and which was focused due to the COVID-19 spread. But recently, the data says that it does not limit the direct flights of India, and today India has an agreement with 36 countries, and definitely this decision to boost up the international fly will definitely be a boost to our economic recovery and our tourism sector. This decision was taken with respect to the random testing, which said that the symptomatic passengers on arrival will be sent to a medical facility and 2% of the total passengers on the aircraft will have to undergo random post-arrival testing. Okay, so now let's move to the next article.
So in this article, we will be talking about the land pooling mechanism. What is land pooling? What is the policy that relates to land pooling, and why land pooling amendments are in news recently. So recently, the Union Minister said that the changes in land pooling policy are aimed at overcoming the hurdles which are faced in execution of DDA scheme. Now, what is DDA? Okay, so DDA यानी कि Delhi Development Authority is a planning authority which was created in 1957 under the provision of Delhi Development Act, and it was done to promote and secure the development of Delhi. Okay, so this act also provides the development of Delhi according to plan and for the matters of ancillary territory, and this was undertaken under the Ministry of Housing and Urban Affairs. So, with the Delhi Development Authority DDA, which is recently facing hurdles in execution of its land pooling policy, Union Minister for Housing and Urban Affairs Hardeep Singh Puri on Tuesday said that amendments to the DDA Development Act 1957 have been proposed to speed up its implementation. Now, let us understand what is land pooling. Okay, so land pooling is basically a mechanism under which the group of landowners pool their land and then they hand it over to the government agency for the development of infrastructural projects. Now, the government which develop these infrastructural projects, after the development on that land, the agency redistributes the land after deducing some portion as compensation towards the infrastructure cost. ओके सो दिस वाज अबाउट द लैंड पूलिंग मैकेनिज्म. अगर हम इसको बहुत सरल शब्दों में समझें तो गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए जो लैंड ओनर्स हैं उनसे लैंड लेती है. अब यहाँ पे ले लीजिए कि अगर 100% लैंड है तो उनको जो रिटर्न मिलता है वो वहाँ पे कुछ लैंड अमाउंट कॉम्पेंसेशन कॉस्ट के तौर पे रिड्यूस किया करके मिलता है. जैसे कि यहाँ पे उनको 70% दे सकते हैं, जो 30% जो कॉस्ट है उसको हम कॉम्पेंसेशन कॉस्ट के तौर पे जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं. सो दिस वाज अबाउट द लैंड पूलिंग मैकेनिज्म. ओके, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि रोड्स हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं या फिर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं, इनको हम ये जो लैंड पासेस हैं जो हम लैंड ओनर्स से लेते हैं उनके ऊपर हम इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डेवलप करते हैं और उसका जो एक पोर्शन है उसको हम ओरिजिनल ओनर को जो है वो रिटर्न कर देते हैं ताकि वो उसको या तो सेल कर सकते हैं या उसके ऊपर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं या फिर जो भी बेनिफिशियरी प्रॉफिट्स है वो उससे कमा सकते हैं. सो जो लैंड पूलिंग पॉलिसी है यहाँ पे वो ये कहता है कि ये जो पूरा एग्रीमेंट है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बेस्ड होता है और इसका जो एम है वो ये है कि जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं या फिर हाउसिंग सप्लाई है उसको हमें टाइम बाउंड मैनर में जो है वो इंक्रीज कर सके और इसके साथ ही जो प्राइवेट पोटेंशियल है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर सके लैंड पार्सल के पूलिंग के द्वारा. तो ये अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं और जो लैंड पूलिंग पॉलिसी है उसको हमने समझ लिया. ये जो 70% वाला मैकेनिज्म है इसको हमने समझ लिया, बट आई स्टिल रिपीट, अकॉर्डिंग टू दिस लैंड पूलिंग पॉलिसी 70% of contiguous land is in that sector is required to attain the eligibility for the formation of landowners consortium, while the participation of owner has crossed 70% in various sectors. Contiguity is yet to achieve the leading to no development since the policy was notified in 2013. So 70% जो है यहाँ पे लैंड कॉन्टिग्यूअस लैंड जो है वो लैंड ओनर के कंसोर्टियम के लिए ज़रूरी है और ये जो नोटिफिकेशन है ये कब आया था, ये 2013 में आया था. और ये जो अमेंडमेंट हुई है लैंड पूलिंग पॉलिसी में ये जो है ये स्पीड अप करेगा हमारी इकोनॉमिक रिकवरी को. जो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं जो इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है, उनको ये स्ट्रेंथन करेगा और इसके साथ ही जो अनपूल्ड लैंड है इट विल बिकम द पार्ट ऑफ द स्कीम. जो अभी जो अनपूल्ड लैंड है उनको भी हम पूलिंग के द्वारा इस स्कीम का पार्ट बनाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ये जो
प्रॉब्लम है कॉन्टिग्विटी ऑफ लैंड, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा एलिमिनेट कर सकते हैं। और अभी हाल में ही जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें 104 विलेजेस जो हैं वो लैंड पूलिंग के लिए आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, एंड अ टोटल ऑफ 16 हाई प्रायोरिटी सेक्टर इन जोन्स L, N and P have been identified by DDA, citing a robust rate of participation. Okay, so this was about this article. Here we understood what is land pooling, what are the policies which relates to land pooling, what is DDA as as a organization, how does it work, under which ministry DDA comes. So ये सारी चीजें हमने इस article में समझी. So now let's move towards the next article. So now if you come to page number 6, and after scrolling down a bit, you have an article about women seeking regular jobs and respectable wages. So एक आर्टिकल आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में हमने 8 मार्च के न्यूज़पेपर में देखा that these आंगनवाड़ी workers were protesting for regular jobs and increase in their honorarium. So now yesterday was 8th March, which was celebrated as International Women's Day. So at this time what happened कि जो एक्टिविस्ट हैं ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन यानी कि AIDWA, इनका जो एक्टिविज्म है ये कोइंसाइड किया वुमेन्स डे से, और इनको ज्वाइन किया आंगनवाड़ी वर्कर्स ने, सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट ने, और इनकी क्या डिमांड थी, ये सीख कर रहे थे रेगुलर जॉब की, जॉब को, रेस्पेक्टेबल वेजेस को, और साथ में ही जो उनका ऑपरेशन है, जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो वायलेंस है, जो वुमेन अपने वर्क फील्ड में फेस करती हैं, इसको लेकर के ये प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे थे. These protesters handed over the memorandum to the district authorities for the Prime Minister and the Chief Minister. अब यहाँ पे फटाफट ये समझ लेते हैं कि AIDWA क्या है. AIDWA यानी कि All India Democratic Women's Association is an independent left-oriented women's association which is committed to achieving democracy, equality and women's emancipation. इसके साथ ही the members are from all strata in society regardless of caste, class and community. Now it has an organizational pressure in 23 states in India with a current membership of more than 9 million. About 2/3 of the organization's strength is derived from poor, rural and urban women. So this was about AIDWA यानी कि All India Democratic Women's एसोसिएशन. सो ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वुमेन के राइट, उनके हक की लड़ाई जो है वो लड़ता है, और ये डेमोक्रेटिक इक्वालिटी और वुमेन्स इमेंसिपेशन जो है वो इनका मोटो है. ये एक लेफ्ट आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अभी 23 स्टेट में प्रेस्ड है, और इसके साथ ही ये हर समाज के हर तबके की महिलाओं को कंप्राइज करता है और उनके हक की बात करता है. अब समझ लेते हैं कि इनका यहाँ पे कहना क्या था, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे. जो कुछ ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स की यहाँ पे बात की गई है, ये एक मीटिंग के दौरान हुआ जो कि रोहतक के मानसरोवर पार्क में जो है वो हेल्ड किया गया था. यहाँ पे AIDWA के जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है जगमती सांगमान, इन्होंने ये कहा कि जो CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के दौरान जो है कुछ ऑब्जेक्शनेबल कमेंट जो है वो मुस्लिम महिलाओं के ऊपर किए गए थे, और ये जो कमेंट थे इनके अनुसार ये आपत्तिजनक थे, और उनका कहना था कि अथॉरिटीज swung into an action in Suli Aap case only after the widespread resentment and public outcry. सबसे पहले तो यहाँ पे ये समझ लेते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को हम बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे उसके बारे में. We'll discuss it in another article or so if you need that. But for now, let's talk a little bit about it. The Citizenship Amendment Act में जो amendment हुआ था, जो कि 1955 में आया था, और उस एक्ट को अमेंड किया गया था अभी रिसेंटली 2020 में, तो that gives eligibility for Indian citizenship to illegal migrants who are Hindu, Sikh, Buddhists, Jains, Parsis and Christians from Afghanistan, Pakistan,
Bangladesh who entered India on and before 31st December 2014. Okay, so this was the amendment that talks about the changes which were made to the Citizenship Amendment Act, which came in 1955. Okay. तो दिस वाज इट अबाउट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कि अमेंडमेंट लाया गया था 2019 में, आई गेस आई सेड 2020. So if I did so, that was by mistake. So it was in 2019 that the Citizenship Amendment Act, जो कि 1955 में आया था, उसको कुछ चेंजेस जो है वो उसमें लाए गए. और इसके साथ ही केस की यहाँ पे बात की गई है, विच इज सूली ऐप केस. तो उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं. सो जो सूली ऐप केस था, इसमें बेसिकली क्या हुआ था, 30-40 जो ट्विटर हैंडल्स हैं उनको मिसयूज किए गए थे फॉर uploading the mock pictures of Muslim women for their purported auction, which was not right by any means, and because it questions the dignity and the basic rights of women. It was against their dignity, and it was not an action which can be called dignified. So this was about this app, Suli app case, and we talked a little about the Citizenship Amendment Act की क्या changes उसमें लाए गए थे. We talked about AIDWA. So basically इनके demands अभी क्या हैं, इनको हम समझ लेते हैं. इनका कहना ये है कि more than 80 lakh women workers जो हैं under various government schemes, under like mid-day meal etc, they are not even recognized as laborers, और जो उनको minimum wages है वो नहीं मिल पा रहे हैं. तो इनका कहना यहाँ पे बस इतना सा है कि जो विमेन है, जो इनफॉर्मल सेक्टर्स में वर्क कर रही हैं, जो वेज वर्कर्स हैं, जो लेबरर्स हैं, उनको प्रॉपर रिकॉग्निशन मिले, और इसके साथ ही जो उनका मिनिमम वेज है, जो उनका ऑनरेरियम है, वो उनको दिया जाए, उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट मिले, और उनको एक अच्छा रीजनेबल लाइफस्टाइल जो है वो उनको दिया जाए. So this was about this protest that we understood. So there is another article in the same respect that talks about Himachal Pradesh, which is committed to empowering women. So we talked about honorarium for आंगनवाड़ी. हमने 1 मार्च के एक आर्टिकल में आंगनवाड़ी वर्कर्स के डिमांड को डिस्कस किया, उनके प्रोटेस्ट को डिस्कस किया, साथ में एक एडिटोरियल भी हमने डिस्कस किया जिसमें हमने जो इनफॉर्मल सेक्टर में विमेन है उनके बारे में बात की. तो यहाँ पे अगर हम इस आर्टिकल को समझें तो हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है, जो वहाँ के सीएम है, उन्होंने ट्यूसडे को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ओकेजन पे ये रेजोल्यूशन लिया कि जो महिलाओं की डिग्निटी और प्रोस्पेरिटी है वो उसको मेंटेन करेंगे और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो काम करेंगे. इसके साथ ही he showed his commitment towards the empowerment of women and he gave priority to them in various schemes. तो यहाँ पे अगर हम कुछ स्कीम्स की बात करें तो इस दिन को उन्होंने महिला स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाया, और महिला स्वाभिमान दिवस प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ओकेजन पे. और इस जो डे था, ये जो प्रोग्राम था, इसको संबोधित करते हुए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना. मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना जो है ये एम करता है यहाँ पे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ विमेन के लिए, ताकि विमेन जो है उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए, उनके आर्थिक सशक्तिकरण पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो काम किया जाए. अब इस योजना के अंदर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंदर जो है 32,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं ये कंस्टिट्यूट किए गए, जिसको कि नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के अंतर्गत जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया. और इसके साथ ही 2,50,000 औरतें जो है वो इसमें इन्वॉल्व हैं. इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना जो है उसको भी अनाउंस किया गया है 2022-23 का जो बजट है उसके अंदर. और इसका क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है कि महिलाओं को जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा
असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके। साथ में उनको हम जो एक एडिशनल अमाउंट है 25,000 रुपये का, वो भी एज अ फंड जो है वो उनको दिया जाए। जो भी महिलाएं इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ एसोसिएटेड हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है स्वावलंबन योजना के अंतर्गत। और इसके अलावा जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनका जो ऑनरेरियम है उसमें 1700 रुपये का इंक्रीज हुआ। और इसके साथ ही अब जो ये आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, इनको मंथली वेज जो है वो ₹9,000 का यहाँ पे मिलने लग जाएगा। सो these were some of the developments that were carried by the Himachal Pradesh Chief Minister, Mr. Jairam Thakur. So these efforts are really appreciable और इनको हमें appreciate करना चाहिए कि महिलाओं के ऊपर जो है इतना यहाँ पे काम किया जा रहा है। So now let's move towards the next article, which talks about the idea of social justice, that the society free of caste discrimination will remain a distant dream. So this was said by the High Court. अब हम इस पूरे केस को जो है एक बार समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है और क्यों ऐसा जो है ये कहा गया है। सो रिसेंटली यहाँ पे क्या हुआ है, जो जस्टिस चंद्रधारी सिंह है, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये कमेंट किया है। वो ऑब्जर्वेशन क्या था कि 3 लोगों के ऊपर जो है डेरोगेटरी और कास्टिस्ट रिमार्क्स प्रोवाइड किए गए थे, और वो लोग एक FIR जो है वो फाइल करने गए, जिसको कि फाइल करने से इनकार कर दिया गया। पुलिस स्टेशन में रिफ्यूज़ कर दिया गया वो FIR फाइल करने से। और इसको देखते हुए जो हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट, उन्होंने ट्यूसडे को एक कमेंट जो है वो दिया। वो ये था कि unless the provision of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act are enforced in their true letters and spirit, the vision of a society free of caste-based discrimination will only remain a distant dream. इनका ये कहना है कि जब तक हम जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटी एक्ट है इसके सही मायने में इन्फोर्स नहीं कर पाते हैं, तब तक एक जो न्याय संगत, एक न्याय तार्किक जो समाज है उसकी स्थापना करना, उसकी कल्पना करना जो है एक दिवा स्वप्न यानी कि एक डे ड्रीम ही रह जाएगा। अब समझ लेते हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट क्या है। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जो है वो 1989 में आया, और इसके बाद SC/ST एक्ट भी कहा जाने लगा। 2015 में इसमें अमेंडमेंट आया, जिसमें अगर जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग हैं उनको किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको किसी भी तरीके से उन पर डेरोगेटरी कमेंट्स पास किए जाते हैं या कास्टिस्ट कमेंट्स पास किए जाते हैं, तो उसके अंतर्गत उसमें जो है पनिशमेंट का प्रोविज़न है। ओके, और ये जो पनिशमेंट है ये यहाँ पे एक एंटीसिपेटरी बेल के प्रोविज़न के साथ आता है कि जो भी लोग इस SC/ST एक्ट के तहत अगर वो अरेस्ट होते हैं या उनको पनिश किया जाता है, उस केस में उनको जो एंटीसिपेटरी बेल है वो डिनाई कर दिया जाता है। तो ये तो था इस अमेंडमेंट के बारे में। अब समझ लेते हैं कि इनिशियली जब SC/ST एक्ट आया था 1989 में, तो उसके क्या प्रोविजंस थे। तो जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है 1989 का, इट इज द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच वॉज इनैक्टेड to prohibit the discrimination and to prevent the atrocities and hate crimes। तो बेसिकली ये जो हेट क्राइम्स या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशंस है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट के लोगों के खिलाफ, इसको जो है ये एक्ट प्रिवेंट करता है। और इसके साथ ही ये एक्ट ये स्टेट करता है जो एट्रोसिटीज है दैट हैव बीन ड्रॉन अपॉन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, उसको जो है ये इंश्योर करता है। और इसके साथ ही ये जो एक्ट है इट इज़ ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज द SC/ST एक्ट POA, द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, या फिर सिंपली द एट्रोसिटीज एक्ट। A national helpline for prevention of atrocities has been set up under this act, and details are
आप जो इस SC/ST एक्ट है, अगर आप इसके डिटेल्स और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप जो इनका हेल्पलाइन डेस्क है उनको आप विजिट कर सकते हैं, ताकि इसके जो भी प्रोविजंस हैं आप उसको और बेहतर तरीके से समझ सकें। सो इसके अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको अपने कल्चरल राइट्स या फिर उनके जो फ्रीडम से रिलेटेड राइट्स हैं उसको उनको गार्डियन करने का मौका मिलता है, ताकि वो अपने जो कल्चरल, रिलीजियस और साथ ही एक फ्री लिविंग का जो राइट है वो उसको इंश्योर कर सके, उसको प्रोटेक्ट कर सके। सो दिस वाज अबाउट SC/ST एक्ट, जिसको कि अभी हमने समझा। सो ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो एक्ट है इसके कुछ प्रोविजंस जो है वो हमारे प्रियम्बल में है, which says that it aims to prevent the commission of offences of atrocities against the members of scheduled caste and tribes, and this aims to provide for the special uh, yeah. So basically it aims to. So now if you scroll down to page number 8, you have an article about MEIL. So MEIL, which is the Mega Engineering and Infrastructure Limited, it has delivered 10 indigenous rigs to the Oil and Natural Gas Corporation, which is ONGC, for exploration of oil and natural gas in onshore fields of Krishna Godavari Basin. यहाँ पे दो चीज़ें जो है जो इम्पोर्टेंट है, एक तो ये न्यूज़ है, बेसिकली आप इसको याद रख सकते हैं कि लगभग 10 ऑयल रिग्स जो है वो MEIL के द्वारा जो है वो ONGC को अभी ही हैंड ओवर किया गया है इन कृष्णा गोदावरी बेसिन। यहाँ पे हम कृष्णा गोदावरी बेसिन में इसको समझेंगे कि कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है वो जोग्राफिकली कैसे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वहाँ जो ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन है उसको थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे ONGC के बारे में भी जानेंगे। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं ONGC के बारे में। सो ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है, और इसके साथ ही इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है इट इज़ इन न्यू दिल्ली, एंड जो ONGC है दिस इज ओवरसीन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसके साथ ही ये जो है वो गवर्नमेंट ओन्ड लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन कॉर्पोरेशन है देश का, और इसके साथ ही जो इंडिया का क्रूड ऑयल है उसमें 70% की जो हिस्सेदारी है, 70% का जो कंट्रीब्यूशन है वो ONGC का है, और ये जो है ये कंप्राइज करता है कंट्री के लगभग 57% ऑफ टोटल डिमांड को, और इसके साथ ही जो 84% नेचुरल गैस का जो कंजम्पशन है उसमें भी ONGC का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ओके, और इसके साथ ही नवंबर 2010 में इंडियन गवर्नमेंट ने ONGC को महारत्न का स्टेटस भी दिया। ओके, ये जो है ये इसको फाउंड किया गया था 1956 में, और इसका जो एरिया सर्विंग है वो वर्ल्ड वाइड जो है ये सर्व करता है। जो प्रोडक्ट्स हैं जो इसके कॉम्पोनेंशियल कंपोनेंट्स हैं वो पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, LNG, ल्यूब्रिकेंट, पेट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रिसिटी है इसके साथ ही। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने ONGC के बारे में समझा। अब थोड़ी सी बातें जो है हम कृष्णा गोदावरी बेसिन के बारे में भी कर लेते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है ये एक एक्सटेंसिव डेल्टाइक प्लेन है जो कि दो लार्ज ईस्ट कोस्टल रिवर्स के बेसिन के तौर पे आता है, वो है कृष्णा और गोदावरी। कृष्णा और गोदावरी जो है ये फ्लोइंग रिवर्स हैं आंध्र प्रदेश के, और 16 एडजॉइनिंग एरियाज जो हैं बे ऑफ बंगाल के, इसमें ये जो रिवर्स हैं ये अपना वाटर डिस्चार्ज करती हैं, और ये जो पूरा बेसिन जो है जो फॉर्म होता है इन दोनों रिवर्स के द्वारा, इसको हम कृष्णा गोदावरी बेसिन के तौर पे समझ सकते हैं। कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है ये एक प्रूफन पेट्रोलाइफेरस बेसिन है कॉन्टिनेंटल मार्जिन का, जो कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है। इसका जो ऑनलैंड पार्ट है वो कवर करता है लगभग 1500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को, और इसके साथ ही जो इसका ऑनशोर पार्ट है वो कवर करता है 25,000 स्क्वायर किलोमीटर को, और इसके साथ ही ये जो बेसिन है ये कंटेन करता है 5 किलोमीटर थिक सेडिमेंट्स विद several cycles of disposition ranging in age from late Carboniferous to Pleistocene.
तो यहाँ पे एक मैप जो है मैंने अटैच किया है आपके समझने के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन एरिया है, ये पूरा जो मैप है ये कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर का जो बेसिन है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, उसको डिनोट करता है। और इसके साथ ही जो ग्रीन एरिया है यहाँ पे ये डिनोट करता है ऑयल और गैस रिजर्व्स को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एरिया है जो कवर हो रहे हैं इनको आप याद रख सकते हैं, जैसे कि भीमावरम है या फिर बंटू मिल्ली है, मसूली रत्नम जो है एक एरिया है, यहाँ पे मसूली पट्टनम एक एरिया है। ये जो एरिया है जो कि ये ग्रीन रीजन जो है ये कवर कर रहा है जहाँ पे ऑयल और गैस रिजर्व्स हैं, इसको आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। तो ये जो मैप है ये आपका ज्योग्राफी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ पार्ट ऑफ योर जीएस पेपर। सो इसको आप यहाँ पे समझ सकते हैं याद रखने के लिए, एंड दिस कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम perspective. So yeah, with this let's move to our next article. So now if you come to yeah, I guess page number 12, that is a news section. You have an article about India, China. They are supposed to hold fresh rounds of talks. So basically, the two sides, they have held almost 14 round of talks, which was regarding the disengagement that was supposed to happen on the north and south banks of Pangdong Lake, which consists of Galwan and Gogra areas. बट अभी जो रिसेंटली एक फ्रेश राउंड ऑफ टॉक जो है उसके क्या मोटोज है उसको हम समझ लेते हैं। अब ये जो दोनों साइड है इनका फोकस है कि जो रिजोल्यूशन है, ताकि हम जो उनके फ्रिक्शनल एरियाज है वहाँ एक बैलेंस क्रिएट कर सके, उस पर जो है वो ध्यान देंगे। और दोनों साइड्स के जो रिसेंट स्टेटमेंट जो कि रिलीज किए गए हैं, दे आर फोकसिंग ऑन फाइंडिंग द एक्सेप्टेबल सोल्यूशन दैट कैन इनकरेज द पॉजिटिविटी इन the nature of defense that both the countries are going through. Now, like the earlier round, the focus is on disengagement from patrolling point, which raised to the 15 in hot springs, while taking forward the comprehensive disengagement and de-escalation efforts forward. ये जो पेट्रोलिंग पॉइंट है, यहाँ पे जो डिसएंगेजमेंट है इसको प्रमोट करने के लिए ये जो टॉक है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही जो हमारी गलवान घाटी है या जो गोगरा एरिया है जहाँ पे जो कि बहुत फ्रिक्शनल एरियाज है डिफेंस के पर्सपेक्टिव से भी, और जहाँ पे जो अटैक्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होते रहे हैं, उसको कम करने के लिए वहाँ पे जो डिसएंगेजमेंट है उसको क्रिएट करने के लिए, ताकि और ज़्यादा जो है वहाँ पे टेंशन क्रिएट ना हो, उसके लिए भी ये टॉक जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम एक सीरीज ऑफ इवेंट को रिकॉल करें तो हम देख सकते हैं कि मई 2020 में ये जो दोनों साइड्स हैं इन्होंने आपस में बात की थी, विच इंक्लूडेड द पॉलिटिकल डिप्लोमेसी एंड द मिलिट्री डिप्लोमेसी एज अ पार्ट ऑफ एग्रीमेंट, which was supposed to talk about the disengagement from both sides of Pangong in February 2021. Given कि यहाँ पे क्या हुआ था, जो चीज़ें हुई थी उसको एक बार समझते हैं। तो जो हमारा ईस्टर्न लद्दाख का पार्ट है वहाँ पे चाइनीज़ इंगेजमेंट जो है, उनके मिलिट्री फोर्सेस का जो इंगेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा रहा है। तो इसको लेकर हमारी तरफ से कई बार बात की गई है, पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जा रही है जिसकी वजह से ये टॉक रिजॉल्व नहीं हो रहा है, ये है कि हम जो है वो डिसएंगेजमेंट पर बात करना चाहते हैं जो हमारा ईस्टर्न लद्दाख का पार्ट है वहाँ पे। हालांकि जो चाइनीज़ डिप्लोमेसी है वो बात करना चाहती है जो हॉट स्प्रिंग्स है या डेमोचौक और देपसान के एरियाज हैं वहाँ पे डिसएंगेजमेंट के बारे में। और इसकी वजह से ये जो क्राइसिस है इसके डिस्कशन में जो है काफ़ी रिलेक्टेंसी आ रही है। वो लोग जो हमारी बातचीत है वो एक नतीजे पर जो है वो नहीं यहाँ पर पहुँच पा रही है। हालांकि जो हमारे आर्मी चीफ है उनका कहना है कि कुछ हद तक जो है वो ईस्टर्न लद्दाख में चाइनीज़ डिसएंगेजमेंट है वो चाइनीज़ एंगेजमेंट है वो जो है वो कम हुई है, थोड़ा पार्शियली जो है वो खतरा टला है, लेकिन थ्रेट अभी भी है। तो यहाँ पे ये ज़रूरी है कि हम इसको एक डिप्लोमेटिक सेटलमेंट के तहत, डिप्लोमेटिक कन्वर्सेशन के तहत जो है वो सुलझा लें, और इसके ऊपर जो है वो इंडिया और चाइना अभी एक बातचीत का सिलसिला जो है वो फिर से शुरू करेगी। तो इसके बाद क्या जो है वो कंक्लूजन्स आते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे as this news come forward. So for now let's move towards the next article. So you can scroll down to page number 14,
where you have a very important article which is about Bangladesh, India, Nepal एंड भूटान. सो ये जो 4 कंट्रीज हैं इनको हम BBIN कंट्रीज कहते हैं. क्यों, अभी हम इस आर्टिकल में समझेंगे. तो इस आर्टिकल में जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो है BBIN कंट्रीज और MVA पैक्ट. तो आइए फटाफट हम इनको डिस्कस करते हैं. अभी जो MVA पैक्ट है, भूटान जो है वो उसमें से अपने आप को आउट कर रहा है. तो सबसे पहले तो समझते हैं कि MVA पैक्ट क्या है, फिर हम समझेंगे BBIN कंट्रीज कौन कौन से हैं, और उसके बाद हम समझेंगे कि भूटान जो है वो अपने आप को क्यों आउट कर रहा है. तो आइए हम समझते हैं MVA पैक्ट. सो भूटान इज कंटिन्यूइंग टू स्टेट आउट ऑफ मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट एक्ट. सो मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट एक्ट क्या है? सो बेसिकली इन जून 15 ओरिजिनल BBIN MVA was signed. BBIN क्या है ये भी समझ लेते हैं. BBIN is B stands for Bhutan, another B stands for Bangladesh, I stands for India and N stands for Nepal, and together they come as BBIN countries. So जो BBIN countries हैं they signed an MVA pact which was in 2015. But भूटान जो है उसने यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट कर दिया. So yes. ओके तो ये जो एग्रीमेंट है इसके अनुसार जो मेंबर कंट्रीज हैं दे विल अलाउ व्हीकल्स रजिस्टर्ड इन अदर कंट्रीज टू इंटर देयर टेरिटरी अंडर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन. Now, the custom and tariff will be decided by the respective countries for these vehicles, and these would be finalized at a bilateral and trilateral forum, whatever be suited to the condition. Now, Asian Development Bank has supported the project as a part of its South Asian sub-regional economic. पर अब यहाँ पे पूरा का पूरा मुद्दा क्या है वो ये समझ लेते हैं कि भूटान जो है वो इसके ऊपर ऑब्जेक्ट कर रहा है सस्टेनेबिलिटी और इन्वायरमेंटल कंसर्न को लेकर. और जो भूटानीज पार्लियामेंट है, जो भूटान की पार्लियामेंट है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो इस प्लान का हिस्सा नहीं होंगे, वो इस प्लान को एंडोर्स नहीं करेंगे. ओके अब जो ये हमारा MVA पैक्ट है इसका एम क्या है? इसका एम ये है कि ये जो है ये इनको हेल्प करेगा, इनका पूरा ट्रेड पोटेंशियल है उसको बढ़ाने में, और साथ में ही जो BBIN कंट्रीज हैं वहाँ के लोगों को आपस में कनेक्ट करेगा, जो सब रीजनल कनेक्टिविटी है उसको भी साथ में ये बढ़ाएगा. अब इस पूरे मामले को हम समझते हैं कि भूटान जो है वो जो है वो आउट क्यों हो रहा है. सो ओके 2020 में जो भूटान का जो पार्लियामेंट है, भूटानीज पार्लियामेंट है जो है उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम जो है इससे आउट होंगे. और एक इंटरव्यू जो है उसमें जो भूटान के प्रेसिडेंट है उन्होंने ये कहा कि भूटान का जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी टॉप प्रायोरिटी ये है कि वो एक कार्बन नेगेटिव कंट्री के तौर पर सामने रहे, और इस केस में उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो MVA पैक्ट को जो है ज्वाइन करें. इससे जो इनकी प्रायोरिटी है कार्बन नेगेटिव कंट्री रहने की, इस पे असर पड़ेगा और वो इसको इंडोर्स नहीं कर पाएंगे, और इसलिए वो जो है वो इस प्लान से आउट होना चाहते हैं. तो इस आर्टिकल में हमने समझा MVA पैक्ट के बारे में जो कि आया जून 2015 में. किन कंट्रीज ने इसको साइन किया हमने वो भी समझा. हमने BBIN कंट्रीज के बारे में समझा, भूटान इससे क्यों आउट हुआ ये भी समझा, भूटान जो है वो एक कार्बन नेगेटिव कंट्री है ये भी समझा, साथ में जो MVA पैक्ट थे उसके क्या एम्स थे इसको हमने यहाँ पे समझा. तो MVA पैक्ट आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखें, BBIN कंट्रीज को याद रखें, और साथ में जो इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स है उसको भी आप याद रख सकते हैं. तो इस आर्टिकल में आज बस इतना ही. नेक्स्ट अगेन जो हमारा स्पोर्ट्स सेक्शन है एक बार उसको देख लेते हैं. There is nothing significant in the sports section. Yeah. तो इसके साथ ही हम खत्म करते हैं आज के एनालिसिस को. मिलते हैं कल फिर दोबारा. So if you like the video, if you like the content that we are bringing to you on our channel, you can please like, share and subscribe our channel and press the bell icon so that you keep yourself updated about whatever we bring for you. Thank you. Have a nice day.